مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دجال کو جو مسیحا سمجھتے ہیں وہ یہودی ہیں. یہودی اس کے انتظار میں کتنی صدیاں گزار چکے. آج میں یہودیوں کا ایک کیلنڈر نکلتا ہے جس کو وہ گاڈ کیلنڈر بھی کہتے ہیں, خدائی کیلنڈر کہتے ہیں. اس کیلنڈر کو ابھی 5777 سال گزر رہے ہیں, یعنی تقریباً 5500 سال پرانا ایک کیلنڈر ہے. اس تاریخ سے آج بھی یہودی چل رہے ہیں. اس تاریخ کو وہ سب سے زیادہ عظمت والی تاریخ سمجھتے ہیں جس میں 3 بار 7 آ رہا ہے, 5777 میں. اور اس تاریخ کی نشاندہی ان کی پرانی کتابوں نے کی تھی. اس اعتبار سے اب یہ بڑی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. میں یہودیوں کے ٹاپک پر اگر عرض کروں کئی دن چلے جائیں گے, کئی دن, کہ یہ آج پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں رکھنے کے لیے, سارے انسانوں کو اپنے غلامی کا طوق پہنانے کے لیے جو انہوں نے کیا ہے وہ ہماری سوچ سے بھی بہت دور ہے. ہمیں وقت کہاں ہے یہ سب چیزیں پڑھنے کا اور سننے کا. گیم میں مصروف کر کے جو ہمیں رکھا ہے, ہمیں آپس کے ایک دوسرے کی لڑائیوں میں جو مصروف کر رکھا ہے, سوچنے کا بھی وقت نہیں دیا جاتا. یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں, دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ انتظار ان قریب ان کا ختم ہونے والا ہے. مقدس کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں اگرچہ وہ رد و بدل ہو گئی, لیکن جو باقیات ہیں تورات میں یا تلمود, یہودیوں کی مقدس کتاب ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ, بائبل, یہ جو مقدس کتابیں جن کی ان کے نزدیک ہیں, ان کی عبارات, ان کی آیات کے مطابق دجال کے آنے کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے. دنیا کے 3 بڑے مذہب جس میں عیسائی, مسلمان, یہودی, پرانے بھی مذہب, عیسائیوں کے نزدیک بھی دجال کافر ہے, مسلمانوں کے نزدیک بھی دجال کافر ہے. صرف یہودی اسے اپنا مسیحا سمجھتے ہیں, اور ان کے بڑوں نے یہ سارے پیشن گوئیاں کی ہیں کہ اس مسیحا کے آنے سے پہلے تمہیں دنیا میں کیا کیا کرنا ہے, وہی تیاریاں وہ کر رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات کہ یہودی اتنا انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں, پوری دنیا میں گھسپیٹ کیوں کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارا مسیحا تمہارے سامنے آنا ہے تو پوری دنیا کو تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا ہوگا. ہر جگہ تمہاری حکومتیں قائم ہوں گی جس وقت وہ مسیحا تمہارا اترے گا. بہت ساری علامات میں نے ان کی کتابوں سے پڑھی ہیں, انجیل میرے پاس رکھی ہے. بہت ساری چیزیں یہودیوں کو یہ بشارتیں دی گئی کہ تمہارا مسیحا اس وقت اترے گا جب اسرائیل میں یعنی سارے یہودی جمع ہو جائیں گے. یہ مقدس زمین پر ساری دنیا کے یہودی جمع ہو جائیں گے. یہ جمع ہونے کا کام 70 سال پہلے سے انہوں نے شروع کیا ہے. اور اس کے بعد ایک اور انہیں بشارت دی گئی ہے کہ انجیر کا درخت جب تمہارے ملک میں پھلنے پھولنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا مسیحا آنے والا ہے. انجیر تو سمجھتے ہوں گے آپ. یہ بہت ساری وہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں جو عام تقریروں سے ہٹ کر کے ہیں. میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نئے سال میں ہم قدم رکھنے جا رہے ہیں, اور ہم یہ اب نئے سال کیا کیا گل کھلانے والا ہے اسے الرٹ کرنا یہ میری اپنی ذمہ داری ہے. انجیر آپ جانتے ہیں, انجیر کے پھل کے متعلق میں نے تحقیق کیا تو تقریباً 1800 سال سے اسرائیل فلسطین کی زمین پر انجیر کا درخت اگا ہی نہیں تھا. 1800 ایئرز 1800 سال پہلے سے, اور اب جا کر کے فلسطین اور اسرائیل میں کثرت سے انجیر کے درخت اگنے لگے اور پھل بھی دینے لگے. ان کی ایک بشارت میں یہ بھی لکھا گیا ہے, انجیل میں یہ عبارت موجود ہے کہ مسیح دروازے پر کھڑا ہوگا جب تمہارے ہاں انجیر پھل دینے لگے. مسیحا تمہارے دروازے پر کھڑا ہوگا. یہ عبارتیں پڑھ کر میں بہت شوق ہوا. کتنی اس میں سچائی ہے وہ اللہ بہتر جانے. اس کے علاوہ یہ بھی انہیں کہا گیا تھا یہودیوں کو کہ جب تمہارے ہاں ایک گائے لال بچیا کو جنم دے, اور وہ لال بچیا ایسی ہو کہ اس کو کسی نے اپنی ملکیت میں نہ رکھا ہو, اس سے کسی نے کام نہ کرایا ہو, اور وہ جوانی میں اس لال بچیا کو تم قربان کرو اور بڑی مقدس عبادت گاہ میں اس کی راکھ ڈالو, تمہارا مسیحا اتر کر آ جائے گا. یہ بھی کتاب میں ہے.
लाल बछिया, गाय की लाल बछिया, समझ रहे होंगे आप, एक बछड़ी। और अभी अभी की न्यूज ये है कि इजराइल में एक लाल बछिया पैदा हुई है और जिसकी हिफाजत ये कर रहे हैं। और कल की न्यूज मैंने ये देखा, एक ईसाई बहुत बड़े साइंटिस्ट है और वो अपनी वेबसाइट में ये सारी अपडेट्स देते रहता है। मैं इनकी सबकी खबरों को 100% यकीन के साथ नहीं बयान कर रहा हूं, महज मैं आपके दिमाग को करीब करना चाह रहा हूं, इस बात को आप तस्लीम कर लें। लाल बछिया का पैदा होना ये तो जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं इसको, सिवाय उन लोगों के जो लोग टिकटॉक में मसरूफ हैं। बाकी जिनको इस्लाम या तारीख से दिलचस्पी है या वो अपडेट्स लेते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, उन्हें पता है कि इजराइल में भी क्या हो रहा है। लाल बछिया पैदा हो गई, उसकी हिफाजत भी हो रही है। कल खबर ये मिली कि उसको कुर्बान भी किया गया है। ये और बात है कि उसकी भेंट नहीं चढ़ाई गई। अब तीसरी बशारत ये भी सुनिए कि कब ये दज्जाल जाहिर होगा, कब ये मसीहा इनका आएगा। ये हमारा मसीहा नहीं, दज्जाल यहूदियों के लिए हो सकता है मसीहा, हमारे लिए वो सबसे बड़ा फितना है। उसकी आखिरी अलामतों में ये बताया गया है कि जो इबादत खाना तुम्हारा खत्म कर दिया गया है, वो इबादत खाना जब तामीर होगा तो तुम्हारा मसीहा आसमान से उतर जाएगा। ये ईसाइयों की किताब में है, तो आसमान से उतरने का जिक्र ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हो सकता है, लेकिन दज्जाल के आने का जिक्र कहीं ये नहीं आया है कि वो आसमान से आएगा कि जमीन से आएगा। अलबत्ता इतना है कि वो जाहिर होगा। अब वो क्या है इबादत खाना जो इनका तोड़ा गया, ये बड़ी लंबी तारीख है। आज जहां पर बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अक्सा, इसके करीब में रिवायात में ये मिलता है कि ये दर हकीकत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तामीर किया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने काम शुरू किया और उसकी तकमील उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। और कुरान पाक में उसका जिक्र भी है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने उसकी तामीर का जिक्र भी फरमाया, हत्ता कि जिन्नात ने उसको तामीर किया है, मस्जिद अक्सा। उसी के साथ में एक हैकल था, एक बड़ा किला था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अपनी हुकूमत का दारुल खिलाफा बनाया था, यानी उस जमाने की वो पार्लियामेंट थी और सारे उस जमाने में जो यहूदी थे, अहले ईमान यहूदी, उन सब की इबादत का वो मरकज था। यहूदियों के लिए पहले हर जगह इबादत करने की इजाजत नहीं थी, उनके लिए मखसूस इबादत खाने थे। ये तो उम्मते मुस्तफा की खुसूसियत है, जहां भी जमीन पाक है अल्लाह ने हमें इबादत की इजाजत अता फरमाई, लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं, जो मखसूस जगह है वहीं जाकर के पढ़ना है। तो हैकले सुलेमानी उसको कहा जाता है, हैकले सुलेमानी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। तवज्जो चाहूंगा, बहुत करीब में आ रहा हूं आपके। यहूदियों की पहले से फितरत में खराबी रही है, सरकशी रही है, पहले से ये कत्ल गारत में मसरूफ रहे। बेशुमार अंबिया इकराम को इन्होंने कत्ल किया है, बहुत सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का कत्ल करते थे, वो भी कुरान पाक में। तो इनकी नाफरमानियां जब हद से बढ़ी तो अल्लाह ताला ने इन पर एक ऐसे जालिम व जाबिर को मुसल्लत किया कि वो बादशाह इनको पूरी तरह से ऐसा डिस्ट्रॉय किया। वो बाबिल का था, इराक का बादशाह था, खत्म कर दिया। यहां तक कि जो हैकले सुलेमानी थी उसे तोड़ फोड़ दिया, अच्छी तरह से तोड़ा, तोड़ करके थोड़ी बहुत दीवारें बाकी छोड़कर चला गया। यहूदियों का कत्ले आम हुआ। कई 100 साल गुजरे, उसके बाद ईरान का एक बादशाह जो इनका हमदर्द निकला, उसको खुसरू भी कहते हैं, ये बादशाह ने यहूदियों का टेंपल दोबारा बना करके दिया। दोबारा बनाया और दोबारा ये टेंपल, इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो इनका होली टेंपल है, हैकले सुलेमानी है, दोबारा इसकी तामीर किया। और फिर कई 100 साल गुजरे, फिर एक बादशाह हरक्यूलस जिसको ये कहते हैं, हिरकल आजम, इसने, ये ईसाई था, यहूदियों पर हमला किया, फिर इस टेंपल को तोड़ दिया और ऐसा तोड़ा कि उसकी एक ईंट भी बाकी नहीं रखी, सारी चीजें खत्म कर दी। उसमें बहुत सारी चीजें जो नायाब थी, जैसे ताबूते सकीना जिसका जिक्र कुरान में है, एक संदूक था पिछले नबियों के पास, वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी था,
जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम का असा था, बहुत सारे नबियों के तबर्रुकात थे। बनी इसराइल उस संदूक को लेकर चलते थे हर जंग में, कभी भी जंग में जाना हो तो वो संदूक लेकर जाते थे, उसको ताबूते सकीना कहते हैं। उसे रख करके दुआ करते थे, अल्लाह उनको फतह अता करता था। वो ताबूत भी खत्म कर दिया गया था, वहां से गायब हो गया था। हरक्यूलिस के जमाने में सब खत्म हुआ, टेंपल दूसरी मर्तबा डिस्ट्रॉय हुआ है, डेमोलिश कर दिया गया है। ये बात आपके दिमाग में रहे, 2 मर्तबा तामीर हुआ और 2 खत्म कर दिया गया, हैकल सुलेमानी। उसके बाद सदियां गुजर गईं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात ने दुनिया को रोशन किया, और फिर ईसाइयों का कब्जा जो बैतुल मुक़द्दस पर था, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में उनसे भी इस मुक़द्दस मस्जिद को आजाद कराया गया, और मस्जिद अक्सा मुसलमानों का उस वक्त से लेकर के एक मुक़द्दस मकाम बनकर रही। कब से? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने से आज तक। हाँ, बीच में एक मर्तबा और ईसाइयों ने उस पर गलबा किया था, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस मस्जिद अक्सा को आजाद कराया, उसके बाद से आज तक। लेकिन उसका क्या, जो टेंपल टूटी। अब मैं करीब आपके नतीजा रिजल्ट के करीब आ रहा हूं। जिस इबादत खाने को यहूदी बहुत मुकद्दस मानते थे, हैकल सुलेमानी, ये 2 मर्तबा टूट गया है। अब सुनिए कि इनकी बशारतों में यह तक लिखा गया है, जिस वक्त तुम अपना इबादत खाना तीसरी मर्तबा तामीर करोगे, तुम्हारा मसीहा आ जाएगा। अब अखबारात उठाओ, अब इंटरनेट पर जाकर यह भी सर्च करो, थर्ड टेंपल क्या है। मैंने ये भी पढ़ा कि अभी की न्यूज है कि इजराइल में ये ऐलान किया गया है कि हम थर्ड टेंपल बनाने जा रहे हैं। थर्ड टेंपल क्या है? वही हैकल सुलेमानी जिसके लिए ये 70 साल से फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं, और कितनी सुरंगें इन्होंने खोद करके देखी हैकल सुलेमानी की बाकियात को ढूंढने के लिए। अब जल्दी मैं आ रहा हूं। यहूदियों ने अभी अपने अखबारात में यह भी ऐलान किया कि इनको ताबूते सकीना भी मिल गया है, जो ताबूते सकीना गायब था वो मिल गया, और उसके अलावा वो जगह भी मिल गई जहां पर हैकल सुलेमानी तामीर था। अब इनको ये खबर हो गई। आपको ये एग्रीमेंट भी मैं याद दिलाऊं कि आज से 70 साल पहले, सन 1948 के करीब, जब बैतुल मुक़द्दस के करीब यहूदी जाकर रहने लगे, इजराइल एक मुल्क की शक्ल में आया, तो एक एग्रीमेंट अरब मुल्कों के साथ ये पास हुआ था कि ये जहां चाहे रहें इजराइल में, लेकिन बैतुल मुक़द्दस को हाथ नहीं लगाएंगे और मुसलमानों को जाने से नहीं रोकेंगे। तो इन्होंने साइन भी किया था, और इनका ख्याल ये था कि बैतुल मुक़द्दस अलग चीज है, हमारा हैकल सुलेमानी अलग चीज है। लेकिन अब जाकर उन्हें यह खबर मिली कि टॉम्ब ऑफ रॉक जिसको कहते हैं, जो पीला गुंबद मस्जिद अक्सा का दिखता है, अब यहूदियों ने ये अपनी तहकीकात में कहा है हैकल सुलेमानी वही था जहां ये टॉम्ब ऑफ रॉक बना हुआ है। अब इनके लिए निहायत जरूरी हो गया है कि बैतुल मुक़द्दस को शहीद कर दिया जाए। टॉम्ब ऑफ रॉक जिसको कहते हैं, ये पीला गुंबद, कुब्बतुस सखरा इसका नाम है, इसको शहीद कर दिया जाए, और इसका ऐलान हो चुका। और चौथी एक और बशारत सुन लीजिए, जहां पर मस्जिद अक्सा कायम है, ये यरूशलेम है। मैं इन तमाम बातों को जो पेश कर रहा हूं, कानूनी एतबार से बहुत सारे लोग समझते हैं इन पेचीदगियों को। जिसने भी यहूदियों के मुतालिक बात की है उसका कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। मैं बार बार इसका एतराफ करता हूं, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, इसकी परवाह जरूर है कि मैं उम्मत मुस्तफा को उनकी अमानतें सुपुर्द करके जाऊं। कितमाने इल्म हराम है। चौथी एक और बशारत इनके मुतालिक ये आई है कि कब आएगा इनका मसीह दज्जाल। ये भी कहा गया है कि यरूशलेम में जब तुम्हारी हुकूमत का सेंटर होगा, तब तुम्हारा मसीह उतर कर आ जाएगा, तुम्हारा मसीहा आ जाएगा। अब तक इजराइल का कैपिटल सिटी यरूशलेम नहीं था, आज तक नहीं था। और आपको अभी पिछले साल पता चला होगा, अमेरिका के सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया कि मैं अमेरिकन एम्बेसी यरूशलेम मुंतकिल कर रहा हूं।
जो इजराइल में उसकी एम्बेसी थी, जाहिर सी बात है एम्बेसी वहां होती है जहां मुल्क की कैपिटल सिटी होती है, राजधानी। दिल्ली में सारे मुल्कों की एम्बेसियां मौजूद हैं, सिफारत खाने दिल्ली में होते हैं। इसी तरह से इजराइल के अंदर जितने भी मुल्कों की एम्बेसियां हैं वो तिल अवीव में थी, तिल अवीव। लेकिन अब उसे मुंतकिल करके, ट्रांसफर करके यरूशलेम में लाया गया, और ये इस बात का ऐलान है कि यरूशलेम अब यहूदियों का मरकज हुकूमत बनने जा रहा है 2019 में। ये ऐलान होगा कि 2019 में यरूशलेम अब पूरे हिंदुस्तान, पूरे इजराइल का मरकज होगा, कैपिटल सिटी होगा। और ये उनकी बशारतों में लिखा गया है कि जिस वक्त यरूशलेम तुम्हारा दारुल खिलाफा बन जाए, दारुल हुकूमत बन जाए, मसीहा तुम्हारा आने वाला है। मैंने कितनी चीजें बताई। मुकद्दस किताबों के एतबार से अगर देखा जाए, वो लाल बछिया भी आ गई, थर्ड टेम्पल का डिजाइन तैयार हो चुका, इंटरनेट पर यह भी देखने को मिला। मैंने ये भी सर्च करके देखा तो आज बैतुल मुकद्दस जिस जगह पर वाक़े है उसका गूगल मैप अगर निकाला जाए तो गूगल मैप में से बैतुल मुकद्दस को हटा करके थर्ड टेम्पल की इमारत रखी गई। मुजव्वजा अभी बनी नहीं है, लेकिन उसकी इमारत पेश करके दिखाया गया पूरी दुनिया को। अब इन यहूदियों को खौफ नहीं किसी से, इसलिए कि हर अरब मुल्क के बादशाह में इन्होंने अपनी जुबान रखी है। हर अरब मुल्क का बादशाह इनका पट्टू बना हुआ है, इनका खादिम है। अब उन्हें यकीन है कि मुसलमानों की तरफ से आवाज नहीं आने वाली है, हमने सबों को खरीद लिया है। आपको यह तक खबर नहीं होगी कि तकरीबन इस्लामी ममालिक नाम से जितने आज जाने जाते हैं, हर मुसलमान बादशाह के घर में यहूदी औरतें पहुंची हुई हैं, इनकी बीवियां यहूदियां हैं। तकरीबन मुल्कों की बात मैं बताऊं, बड़े प्लानिंग के साथ, बड़े मंसूबों के साथ। मेरे अजीजों, हालात बहुत अजीब और गरीब हैं, लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूं कि अब अगले जो आने वाले दिन हैं ये हमारे लिए बड़े चैलेंजेस के हैं और बहुत बड़े फितने के हैं। जो दज्जाल के आने की अलामतें बयान की गई थी तकरीबन वजूद में आ गई। और एक सुनिए, हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एतबार से दरियाए तबरी का जिक्र है। एक दरिया है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बहता है। उस दरिया के मुतालिक ये भी फरमाया गया, जिस वक्त दरियाए तबरी सूख जाए दज्जाल जाहिर होगा। अब दरियाए तबरी के मुतालिक हमने खबर मालूम की तो सिर्फ 2.5 फीट पानी बचा हुआ है, 2.5 फीट पानी बचा हुआ है। अब ये तमाम अलामतें क्या मुसलमानों को बेदार करने के लिए काफी नहीं है? फिर भी आज हम पूरे तौर पर ऐसी गफलत की नींद सो रहे हैं जैसे हमें कुछ खबर ही नहीं है। अजीजान गिरामी वकार, कुर्बान जाओ मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरों पर। दूसरी कौमों के पास ऐसा कोई नहीं जो उन्हें आगे की बात बताया हो, सिवाय हमारे पास जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत तक की बातें ऐसे खोलकर बयान की है, ऐसे बयान की है कि जिसमें एक रत्ती बराबर भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद उन्हीं की उम्मत सबसे ज्यादा गफलत की शिकार है और पूरी दूसरी कौमें तैयारी में है, तैयारी में है, तैयारी में है। पूरी ईसाइयत तैयारी में है, पूरी यहूदियत तैयारी में है। और आपको मालूम, अब ये थर्ड टेम्पल बना करके रहेंगे, ये बनाएंगे, जिसके लिए अब मस्जिद अक्सा को शहीद करना पड़ेगा, बैतुल मुकद्दस को शहीद करना पड़ेगा। तो एक खौफ तो है, हुकूमतें अगर आवाज नहीं उठाएंगी तो कौम तो उठ जाएगी। मुसलमान अभी मरे नहीं, ईमान अब भी जिंदा है। तो ये खौफ है, इसके लिए अब डायरेक्ट मस्जिद अक्सा पर हमला नहीं किया जाएगा। 2018 के अखबार और भी उठा करके देखो, इंग्लिश के, एक ईसाई ने उनको एक्सपोज किया है कि फिलिस्तीन में जलजले आए थे, यानी मस्जिद अक्सा जहां यरूशलेम में जलजला, अर्थक्वेक, जलजले आए थे। अब इसकी तहकीक जब की गई तो पता चला कि इन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए से आर्टिफिशियल जलजले लाए। हकीकत में जमीन में जलजला आया ही नहीं था। जमीन के अंदर ऐसे केमिकल और मवाद डाल करके जमीन को हिलाया गया ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो कि जमीन में जलजला आया, इसलिए मस्जिद अक्सा गिर गई, बैतुल मुकद्दस गिर गई। ये तक प्लानिंग है।
और ये करके रहेंगे इन तमाम चीजों में। मेरे अजीजों, खैर ये यहूदी अपने मसीहा के लिए इतने सारी इंतजामात कर रहे हैं, अपने मसीहा के आने के लिए वो पूरी फील्ड हमवार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उनके हुक्काम, उनके जो हाखाम होते हैं यहूदी उलमा, उन्होंने यहूदियों को इस काम पर लगाया है कि सिवाय यहूदी कौम के पूरी दुनिया की हर कौम का मजहब तब्दील होना चाहिए। जिसके लिए अमेरिका के जितने भी सदर आते रहे, उन्होंने अपनी तकरीरों में यह ऐलान किया है कि वन वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो तहकीक करके देख लेना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब यह है कि अमेरिका के ड्रीम्स में है, उसके ख्वाबों में है कि पूरी दुनिया का एक मजहब होना चाहिए, पूरी दुनिया एक ही नेशनलिटी की होनी चाहिए, अलग अलग कौमें नहीं होनी चाहिए, अलग अलग रंग लिबास, अलग अलग नस्लें नहीं होनी चाहिए। और उसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे हिंदुस्तान में सिविल कोड लाया जा रहा था। ये सब उसी का हिस्सा है। यहां आप क्या समझते हैं कि हमारे ऊपर तख्त पर बैठे हुए हैं, ये बज़ाहिर देखने में चाय वाले हैं लेकिन हैं हकीकत में यहूदियों के गुलाम। पूरी तौर पर इन्हें प्रमोट किया जाता है इजराइल से, और ये वो तमाम चीजें करने जा रहे। पूरी इंडिया को कैशलेस कर दो, ये भी बातें मैंने अभी चंद दिन पहले बताई। कैशलेस कर दो, सिर्फ इनको एटीएम पर रखो, कोई भी कैश नहीं रख सकता। जानते हैं आप क्यों? गवर्नमेंट के पास है तुम्हारे आधार की तमाम तफसीलात। आधार कार्ड सबने बनाए, हमने भी बनाए, हमारी आंखों के भी, हमारे हाथों के भी, सब कुछ ले लिया गया है। और फिर हमारे बैंक के सारे अकाउंट्स को आधार से जोड़ा गया है। जानते हैं आप, आपने सारा अपना माल बैंक में जमा किया है, गवर्नमेंट जिस दिन भी चाहे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकती है। आप अगर उनकी बातें नहीं मानते, आप उनके साथ नहीं चलते, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जाओ, क्या करोगे? अब तुमने तो सारा माल वहां रखा था। ये गुलाम बनाने के तरीके हैं कि हम जो कह रहे हैं वो मान लो, वरना फिर तुम भूखे मर जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। और हदीस पाक में ये इसकी भी बशारत आई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग इंसान का गोश्त खाएंगे। पूछा गया ऐसा क्यों? कहा कहत की वजह से, भूखमरी की वजह से। सामान लेने के लिए उनके पास माल नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, एक दूसरे को काट खाएंगे। अब ये हदीस पाक में है और वो अमल लाया जा रहा है आज, और शायद अब ये अगले सालों में ये सब इंप्लीमेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया में एक चिप निकाली गई है, गालिबन उसका नाम IRF या RIFD ऐसा कुछ नाम है, क्रिप्टो करेंसी, या एक छोटी सी चावल के दाने के बराबर एक मेमोरी कार्ड है जो हाथ में इंजेक्शन के जरिए से डाला जाता है, और उसमें सारा डिटेल्स तुम्हारा मौजूद होगा। तुम्हारे दस्तावेजात, तुम्हारे जायदाद, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे अकाउंट की डिटेल्स, सब कुछ उसके अंदर, उस चिप के अंदर होगा। और जहां आप टच करेंगे किसी स्क्रीन पर तो आपका सारे डिटेल्स आ जाएंगे, और इसी के जरिए आप कुछ भी खरीद सकते हो। मॉल में, कहीं पर भी अपने अंगूठे को स्क्रीन टच करके अपनी सारी चीजें खरीद सकते हो। उस चावल के दाने के अंदर तुम्हारी पूरी तफसीलात हों। ये क्रिप्टो करेंसी ऑस्ट्रेलिया की कई कंपनियों में आज इंप्लीमेंट हो चुकी। ये तमाम हालात की तरफ जो आज दुनिया चल पड़ी है, जानते हैं क्यों? चंद दिनों के बाद पूरी दुनिया को गुलाम बनाया जा रहा है। सारे लोगों को सिर्फ वही करना होगा जो हमारे हाकिम कहेंगे, हमारे हुक्काम जिस अंदाज की हमें ऑर्डर देंगे वही करना होगा। अजीजा ने गिरामी वकार शायर ने बहुत पहले ही हमें ये कहा था, उठो वो गर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा फिर खाक के साए तले। गिरामी वकार, इस दज्जाल के आने की तो तमाम बशारतें दी गई थी, जो तमाम अलामात बयान की गई थी, तकरीबन हो चुकी, और अब यहूदी उसके इंतजार में है। मैं एक बात आपके सामने पूछना चाहता हूं, एक बात,
जो कौम अपने मसीहा के इंतजार में पूरी दुनिया को उलट पलट कर रही है, यहूदी, हर एक का मजहब चेंज करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, सालों से मेहनत कर रहे हैं वो, और पूरी दुनिया में ऐसे टेक्नोलॉजी लाए हैं जिसकी बदौलत अब ये समझना मुश्किल नहीं है कि कब बारिश बरसाया जा सकता है, कब जमीन से पौधे उगाए जा सकते हैं। सारी टेक्नोलॉजी आ गई। अब दज्जाल के उन कामों पर अब शक भी नहीं होने लगा कि होगा ऐसा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो करके दिखा सकता है। किसी आदमी को फौरन मार देगा, किसी को मरे हुए को जिंदा करके दिखाएगा, और नए अंदाज में बच्चे पैदा करके दिखाएगा। ये तमाम चीजें आज टेक्नोलॉजी के जरिए से हो रही हैं। उसकी आने के रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, फील्ड बनाई जा रही है कि दज्जाल के आने के लिए। मेरे अजीजों, जिस वक्त दज्जाल उतरेगा तो फिर यहूदी उसकी पूरी फौज में होंगे, पूरी फौज में होंगे, और वो कत्ले आम मचाएगा पूरी दुनिया में। 40 दिन के अंदर वो तकरीबन पूरी दुनिया घूम लेगा। और अगर मुकद्दस किताबों का जिक्र देखें तो फरमाया गया 7 साल दुनिया में रहेगा। दूसरी किताबों की इबारात ये बताती हैं 7 साल रहेगा, जिसमें से 3.5 साल, आधा जो उसका जिंदगी का वक्त है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों को कत्ल करने में गुजारेगा, खत्म करने में गुजारेगा, और उसके लिए सारी हुकूमतें उसका साथ देंगी। और बाकी के 3.5 साल जब इमाम मेहदी का भी ज़हूर हो चुका होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आ चुके होंगे, और फिर वो उसका मुकाबला करके उसे खत्म भी करेंगे। यह है बाद की बात। लेकिन मैं एक चीज जो कहने जा रहा था वो ये है, जो कौम अपने मसीहा के आने के लिए क्या क्या चीजें कर रही है। 3rd टेम्पल बनाना ये कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन वो बनाने के सारे प्रोजेक्ट तैयार कर लिए। अब वो कॉइन भी उन्होंने बना दिया, वो भी मैंने देखा कि उसमें दाखिल होने वाले के लिए वो कॉइन लेना जरूरी है, सोने का या चांदी का सिक्का है, जिस पर वो 3rd टेम्पल की फोटो भी है कि वो कॉइन जिसके पास होगा वही डाल करके उसके अंदर जाएगा। ये सब तैयारियां हैं, सारी तैयारियां हैं, और ये सारी तैयारियां अपने एक मसीहा के आने के लिए वो कर सकते हैं। तुफ है हमारी जिंदगी पर कि हम अपने नबी को उनसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन अपने नबी की मुलाकात के लिए कोई एक बंदा भी गुनाह छोड़ने को तैयार नहीं। क्या हम में से किसी को यकीन नहीं कि हम अपने आका से मिल सकते हैं या नहीं? बल्कि यकीन होना चाहिए कि जिस वक्त वो करम नवाजी पर आए, अपने हर उम्मती को अपने दीदार से मुशर्रफ कर सकते हैं। आका कौनैन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दीदार से मुशर्रफ करें, ये नामुमकिन बात नहीं। लेकिन पूरी उम्मत आज रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतजार के लिए कौन सा अमल करती है? हुजूर के दीदार के लिए आप में से किसकी चेंजिंग है? वो यहूदी पूरी दुनिया में उलट पलट कर रहे अपने एक दज्जाल के आने के लिए, और उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसको ये मालूम है कि अगर आज मैं बैठ करके रो दूं तो मदीने के ताजदार बेकरार होकर मेरे घर तशरीफ लाएगा, उसके बावजूद हमारी पूरी रात इस मोबाइल के एप्लीकेशन में गुजरती है, गेम खेलने में गुजरती है, दूसरों की गीबत और कट्टों पर बैठकर चुगलियां करने में गुजरती है। अजीजा ने गिरामी वकारी, अब ये जो अगले साल आने वाले हैं, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपको बता दिया। अलर्ट होना तुम्हारा काम है, आगाह होना तुम्हारा काम है। अब भी अगर न संभलोगे तो अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले ये कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। जब कहानियां लिखी जाएंगी तो तुम्हारी दास्तान भी खत्म कर दी जाएगी। गिरामी वकार